بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں۔ ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا۔ بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناؤ۔ اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے۔ ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے، لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے، ضرور دیکھنا۔ ان کی کتابیں 4 کتابیں آ چکی ہیں۔ پہلی کتاب ہے میں ساز ڈھونڈتی رہی، دوسری کتاب ہے شہر درد، تیسری کتاب ہے غزالاں تم تو واقف ہو، اور چوتھی کتاب ہے ساز سخن بہانہ ہے۔ پاکستان کی یہ نامور شاعرہ تشریف لاتی ہیں، استقبال کیجئے گا ادا جعفری۔ ادا صاحبہ، آپ کی 4 کتابوں کا تعارف میں کروا چکا، اور یقیناً اردو ادب پڑھنے والوں کے لیے یہ سرمایہ ہیں۔ کچھ یاد ہے زندگی میں پہلا شعر کب کہا تھا اور کیوں کہا تھا؟ کیوں تو میں اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے 9 سال کی عمر میں شاعری شروع کی ہے۔ اچھا جی۔ تو گویا شاعری میں نے اختیار نہیں کی، بلکہ شاعری نے میرا انتخاب کیا۔ تو کچھ ذہن میں محفوظ ہے پہلا شعر؟ نہیں، مجھے یاد نہیں۔ یاد نہیں۔ اب یہ ہے کہ کوئی خوبصورت چیز عطا فرمائیے۔ میں تازہ غزل پیش کرتی ہوں۔ جی پیش کرتی ہوں۔ ارشاد۔ دستک ہوا کی ہو، دستک ہوا کی ہو تو بطرز فغاں نہ ہو، دستک ہوا کی ہو تو بطرز فغاں نہ ہو، دستک ہوا کی ہو تو بطرز فغاں نہ ہو، یا اتنا اعتبار ہو دل بدگماں نہ ہو، واہ، یا اتنا اعتبار ہو دل بدگماں نہ ہو، جھولی میں کچھ نہیں ہے تو ایک آس ہی رہے، جھولی میں کچھ نہیں ہے تو ایک آس ہی رہے، ایسی خبر سنا کہ دلوں کا زیاں نہ ہو، پھر پڑھیے۔ جھولی میں کچھ نہیں ہے تو ایک آس ہی رہے، ایسی خبر سنا کہ دلوں کا زیاں نہ ہو، واہ واہ۔ بستے گھروں سے دور نہیں دشت بے امان، بستے گھروں سے دور نہیں دشت بے امان، میرے لہو کا رنگ اگر درمیاں نہ ہو، واہ، میرے لہو کا رنگ اگر درمیاں نہ ہو، یوں تو ہوا کہ دھوپ کے نیزے تھے اور میں، یوں تو ہوا کہ دھوپ کے نیزے تھے اور میں، یوں تو ہوا کہ دھوپ کے نیزے تھے اور میں، ایسا نہیں کہ سر پہ میرے سائباں نہ ہو، واہ، ایسا نہیں کہ سر پہ میرے سائباں نہ ہو، میری طرف نہ دیکھ مگر دیکھ لے ذرا، میری طرف نہ دیکھ مگر دیکھ لے ذرا، تحریر زخم زخم کہیں رائے گاں نہ ہو، واہ واہ، میری طرف نہ دیکھ مگر دیکھ لے ذرا، تحریر زخم زخم کہیں رائے گاں نہ ہو، آئینے ایسا جھوٹ
कभी बोलते न थे। आईने ऐसा झूठ कभी बोलते न थे। आईने ऐसा झूठ कभी बोलते न थे। दिल का नगर बसे भी तो दिल सा मकान हो। वाह। दिल का नगर बसे भी तो दिल सा मकान हो। आखिरी शेर है। जी। पलकों पे थम सके न उजाले तो फिर अदा। पलकों पे थम सके न उजाले तो फिर अदा। मंजिल मुसाफिरों की कहाँ हो कहाँ न हो। वाह वाह वाह। के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। यहां से आगाज करते हैं। आपको लिए चलता हूं, स्टॉल खुलता है असली फोम मोल्टी फोम का। आपके पास 500 पॉइंट्स हैं। कैसे खेल खेलना चाहेंगे आप? जोर से बोलें। ये बताएं कि सब्जियों में सबसे कम विटामिन कौन सा होता है? डी होता। नहीं जी, सब्जियों में सबसे कम विटामिन होता है ई। आदम सानी किन पैगंबर को कहा जाता है? आदम अलैहिस्सलाम। गलती हो गई मेरे भाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। 100। ये बताएं कि एम्स्टरडम किस मुल्क की बंदरगाह है? जर्मनी। हॉलैंड। ये गलती और हो गई और अब मेरे दोस्त के पास रह गए 200 पॉइंट्स और 3 सवाल हो गए। मेरे ख्याल 200 का ही पूछ लेता हूं। 200 ठीक है। हाँ। पाक फौज की किस रेजिमेंट ने सबसे ज्यादा निशाने हैदर हासिल किए हैं? पंजाब रेजिमेंट। लो जी, ये तो तुक्का लग गया इनका। कहिए तो 400 का पूछ लो। 100 का। 100 तो आपको रास नहीं आ रहा। बहरहाल आप कहेंगे तो मैं मानूंगा। ये बताएं कि हकीम अलीमुद्दीन ने लाहौर शहर में कौन सी मशहूर मस्जिद तामीर करवाई थी? नहीं मालूम। नहीं मालूम। मस्जिद वजीर खान। आपने मेरी बात नहीं मानी। 5 सवाल पूरे हुए। आपके पास 300 पॉइंट्स रह गए और 5 सवाल पूरे हुए। तशरीफ ले आए। 300 पॉइंट्स की खरीदारी आप कर सकते हैं। आइए। चुपके पढ़ा करो। वाओ। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है। किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। वाह। किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। आईने पर बात याद आई कि तू ही बेहतर है आईना हमसे। हम तो इतने भी रूशनास नहीं। और मियां मौला बख्श कुश्ता ने कहा कि हाय रब्बा मेरे आ तू शीशा ही बना दिंदो मैनू मेरे यार दा मैं हुंदा किसे कार दा कंध नाल लगा रहिंदा जिथे ओ खिलारदा वेख के मैनू जुल्फां ते सवारदा। यूं लगता है सोते जागते औरों का मोहताज हूं मैं। आंखें मेरी अपनी हैं पर इनमें नींद पराई है। ये खला है अर्शे बरी नहीं, कहाँ पांव रखूं जमीन नहीं। तेरे दर पे सजदे का शौक है, जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। आहा। जो यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। नून। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था। यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। न कर ऐलान इतनी बार मस्जिद के स्पीकर से, गरीबों के जनाजे में कोई शामिल नहीं होता। अभी राह में कई मोड़ हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। तुम्हें जिसने दिल से भुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए। ये क्या कि दिन को भी रात लिखो, हुनरवरो दिल की बात लिखो। वो जिनके दिल पे मोहरें सब्त हों क्या उनको समझाना, उन्हें हम आप क्या उनको पैगंबर छोड़ देते हैं। न दीद है ना सुखन, अपना हर्फ है ना प्याम।
कोई भी हीलाए तस्कीन नहीं और आस बहुत है। उम्मीद यार नजर का मिजाज दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी न पूछो कि दिल उदास बहुत है। तुम आज कुछ भी न पूछो कि दिल उदास बहुत है। ये रख रखाव मोहब्बत सिखा गई उसको, वो रूठ कर भी मुझे मुस्कुरा के मिलता है। ये अजीब खेल है प्यार का, मैंने आप देखा ये मौजज़ा, वो जो लफ्ज मेरे गुमा में थे वो तेरी जुबां पे आ गए। वो तेरी जुबां पे आ गए। ये तू पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आ बे अबे ओ चाक गिरे बां वाले। ये जो रात दिन का है खेल सा, इसे देख इस पर यकीन न कर, नहीं कोई यक्स भी मुस्तकिल सरे आईना उसे भूल जा। सरे आईना उसे भूल जा। अलिफ। अश्क अपना कि तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है। तू मेरा कुछ नहीं लगता, मगर इतना तो बता, देख के मुझको तेरे जहन में आता क्या है। टीमें तो बराबर रही हैं, ना कोई हारा ना जीता। वकास सफिर और शाहिद बिलाल हसरत मास्टर पेंट्स के आपको तोहफे मुबारक हों, और फातिमा अहमद सहर अशफाक आपको गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स के तोहफे मुबारक हों। बैतबाजी का मुकाबला शुरू होता है। पहला शेर मैं दे देता हूं जी, फिर आगे आप शुरू कर दीजिएगा। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो। महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। मुख्तार सिद्दीकी। रहो वाओ। वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। बिस्मिल साबरी का ये शेर उसे हमेशा जिंदा रखेगा। बिस्मिल साबरी का ताल्लुक साहिवाल से था। अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। जी ये सोचकर कि वो खिड़की से झांक ले, शायद गली में खेलते बच्चे लड़ा दिए मैंने। गली में खेलते बच्चे लड़ा दिए मैंने। ये यकीन जान के अगले जन्म की आमद पर, बना जो तू कभी रांझा तो हीर हम होंगे। ये सानेहा मेरे वहमो गुमान में भी न था, चराग सामने वाले मकान में भी न था। चराग सामने वाले मकान में भी न था। अलिफ। इतने चुपचाप के रास्ते भी रहेंगे लाइल्म, छोड़ जाएंगे किसी रोज नगर शाम के बाद। दिल अजब वसवसों में रहता है, आईना पत्थरों में रहता है। धड़कनों का कुछ एतबार नहीं, और वो धड़कनों में रहता है। यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी है, कभी मिलना तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। तुम्हारे मसले का हल निकालेंगे। ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतजार मियां। नून। न सवाल है न जवाब है, न सलाम है न पयाम है, हमें उनसे रब्त है आजकल जिन्हें अपने काम से काम है। ये जो बादल तेरे होंठों की तरफ देखते हैं, मसला ये है कि एक रंग धनक में कम है। ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, कभी भी दोस्तों को आजमा कर कुछ नहीं मिलता। जी ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आंखें,
जैसे कोई देख रहा हो पहली बार समुंदर। जी। रुत बदलने लगी रंगे दिल देखना, रंगे गुलशन से अब हाल खुलता नहीं। जख्म छलका कोई या कोई गुल खिला, अश्क उमड़े के अब्रे बहार आ गया। अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्म अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। तेरे होने का चर्चा था। सूफी सोब अलिफ का शेर। उठे तेरी महफिल से तो किस काम से उठे, दिल थाम के बैठे थे जिगर थाम के उठे। ये दीवारें मुझे पागल ना कर दें, जो होना है वो सब लिखा हुआ है। इसे भी जायचों का इल्म है क्या, ये बच्चा किस लिए सहमा हुआ है। ये कह के फेंक दिए अहले कारवान चराग, हमें तो शहर में होना है शाम से पहले। हमें तो शहर में होना है शाम से पहले। ये जो मेरी आंख में अक्सर नम रहता है, पेशे नज़र हमेशा एक ही गम रहता है। इश्क अजियतनाक भी है और सब्र तलब भी, लेकिन इससे आदमी ताज़ा दम रहता है। जी। ये ख्याल सारे हैं आरजी, ये गुलाब सारे हैं कागजी। गुले आरजू की जो बास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। वही लोग मुझसे बिछड़ गए। ये यकलख्त गिरा है तो जड़ें तक निकल आईं, जिस पेड़ को आंधी में भी हिलते नहीं देखा। आप बरहम ही सही बात तो कर लें मुझसे, कुछ न कहने से मोहब्बत का गुमा होता है। जी जी ठीक। यानी तरतीबे करम का भी सलीका था उसे, उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। ये यूं फिर रहा है कांच का पैकर लिए हुए, गाफिल को ये गुमा है कि पत्थर ना आएगा। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है? हाँ। है ये। जरा जल्दी कीजिए जी, क्योंकि अब वक्त आपके पास कम है। हर किसी के सामने रोना, जिसे मिलना लिपट जाना, गले का हार हो जाना। अलिफ। उसकी बस्ती से पहले कब्रिस्तान आशिकों के लिए इशारा था। आशिकों के लिए इशारा था। अलिफ। उठाकर तोड़ डाला आईना हुस्ने रकाबत से, वो कल इस पर बिगड़ बैठे कि हमसा दूसरा क्यों हो। वाह। वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। ये यूं भटकता फिर रहा है चारागर के आसपास, जैसे कोई बेअमा हो अपने घर के आसपास। साकी गई बहार, रही दिल में ये हवस, तू मिन्नतों से जाम दे और मैं कहूं कि बस। तू मिन्नतों से जाम दे और मैं कहूं कि बस। सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, देखो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास में। नून। ना करो बहस, हार जाओगी, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। नरगिसी नैन मरमरी बाहें, जिनसे किरणें बदन चुराती हैं, ये तो चीजें हैं आसमानों की, ये जमीन पर कहां से आती हैं। ये जमीन पर कहां से आती हैं। नून। नशे की तरह मोहब्बत भी तर्क होती नहीं है, जो एक बार करेगा वो बार बार करेगा। आज इन गलियों में पत्थर मारने वाले कहाँ, फिर जो पछताएगा प्यारे सोच कर दीवाना हो। वाह। वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। अलिफ। आरज़ू है मुझे एक शख्स से मिलने की बहुत, नाम क्या लूं कोई अल्लाह का बंदा होगा।
नाम क्या लूं, कोई अल्लाह का बंदा होगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। अलिफ। अब वो हर जाई किसी और से कहता होगा, तू मेरी जान है तुझे कैसे भूल सकता हूँ। कैसे भूल सकता हूँ, नून। न वो हसीन न मैं खूबरू मगर एक साथ, हमें जो देखे तो वो देखता ही रह जाए। हमें जो देखे वो देखता ही रह जाए। बस जी, दोनों टीमों के लिए जो वक्त मखसूस किया गया था वो तमाम हुआ जी। और मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ साथियों से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं, पहले अपने दो शेर सुना दें कुछ, और उसके बाद नतीजा ऐलान फरमा दें। तशरीफ लाएं जी, जनाब खालिद अहमद और जनाब शहजाद अहमद। जनाब खालिद अहमद। है मेरे साथ कू बकू वो भी, है मेरे साथ कू बकू वो भी, खो न दे अपनी आबरू वो भी। शहर का शहर अजनबी रहता, काश करता न गुफ्तगू वो भी। वाह। शहर का शहर अजनबी रहता, काश करता न गुफ्तगू वो भी। जनाब शहजाद अहमद शहजाद। कहीं जंगल कहीं दरिया पड़ेगा, कहीं जंगल कहीं दरिया पड़ेगा, कहीं जंगल कहीं दरिया पड़ेगा, भर सूरत हमें चलना पड़ेगा। वाह। मसाइल रोज बढ़ते जा रहे हैं, हमें अब एक हो जाना पड़ेगा। माशाल्लाह, वाह जी वाह। जो दुनिया भर को धोखा दे रहे हैं, ये सौदा अब उन्हें महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान ने, कुदरत ने पाकिस्तान को अपनी फैयाजियों से बहुत नवाजा। इमरानियात के तालिब इल्म कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को देखना हो कि वो कितना अमीर है, खुदा का कितना करम है उस मुल्क पर, तो ये पूछें कि क्या उस मुल्क के पास समुंदर है। पाकिस्तान के पास समुंदर है। फिर वो कहते हैं ये देखें उसके पास पहाड़ हैं, दुनिया की 8 खूबसूरत तरीन और बुलंद तरीन चोटियों में से 6 पाकिस्तान के पास हैं। फिर कहते हैं क्या उसके पास रेगिस्तान है। हमारे पास थर का रेगिस्तान है, चोलिस्तान का रेगिस्तान है। फिर पूछते हैं कि क्या उसके पास मैदान भी है। पाकिस्तान का 40% रकबा मैदानी है। गोया देने वाले ने अपनी फैयाजियों में हमारे लिए कमी नहीं की। पानी यहां आके मरा कि हम अच्छे वारिस साबित न हो सके। हमें कोई जीनियस लीडर नहीं मिला। आज लोग 2 सड़कें बना के, 4 पुल बना के, 2 तालाब बना के और बड़े फख्र से अखबारात में तस्वीरें छपवाते हैं और बड़े बड़े बयानात देते हैं। मैं आपसे गवाही से पूछता हूं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में, मक्का में कितने पुल बनाए थे, कितनी सड़कें बनाई थी। कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। क्या बनाया? कौम बनाई। जब कौम बन जाती है, पुल खुद बन जाते हैं, सड़कें खुद बन जाती हैं। हज़रत अली करमल्ला वजह की नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई? आप करमुल्ला वजह के बड़े साहबजादे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। अगरचे मैं उम्र में छोटा हूं, मुझे आशोबे चश्म का आर्जा भी है,
और टांगें भी पतली हैं, ताहम आपका दस्तो बाजू बनूंगा। ये तारीखी अल्फाज किस शख्सियत के हैं? ये हजरत अली करमुल्ला वजह ने फरमाया था। जवाब दुरुस्त है साहब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देना चाही थी कि वही नाजिल हो गई और उनकी कुर्बानी राह हक में कबूल हो गई। उस जगह का नाम बताइए जहां ये वाकया पेश आया। ये मिना के मुकाम पे। मिना के मकाम पर जवाब दुरुस्त है। मदीना मुनव्वरा और बदर, ये जहां जंग बदर हुई थी, जो मशहूर जंग है, इस्लाम की पहली जंग जो है, मदीना मुनव्वरा और बदर का दरमियानी फासला कितना है? सर 80 मील। पक्की बात। बताइए किस सूरत में बालिग मर्द और बालिग औरत पर नमाज फर्ज नहीं है? ये वो इंसान जो लुनेटिक, इनसेन या अनसाउंड माइंड से कहा जाता है, पागलपन की हालत में हो, मजनू दीवाना हो, उस पे। अगर किसी का दिमागी तवाजुन दुरुस्त ना हो, खा वो औरत हो या मर्द हो, उस पर नमाज फर्ज नहीं है। इसका यह भी मतलब लिया जा सकता है कि जो कुछ आप पढ़ते हैं नमाज में, आपको उसके मतलब का पता होना चाहिए कि मैं ये पढ़ रहा हूं। पागल को क्या पता कि वो क्या पढ़ रहा है? कोई इधर की बात पढ़ रहा है, उधर की बात पढ़ रहा है। तो इससे यह साबित हुआ कि नमाजी को पता होना चाहिए कि मैं जो आयत मुबारका की तिलावत कर रहा हूं, इसका मतलब ये है। जवाब दुरुस्त है जी। खाना काबा की तामीर के दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या दुआ मांगते रहे? ये दुआ ये थी जी कि रब्बना तकब्बुल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे नश्व नुमा देने वाले, हमारा ये अमल कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। ये पारा दोइम अल बकरा और 127 नंबर आयत है जी। गलती होगी जी। उस तालाब का नाम बताइए जिसमें 6 बरस की उम्र में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैराकी और शनावरी की खूब मशक की। यसरब के मुकाम पे बनु अदी का तालाब था, जहां बनु अदी का तालाब। जवाब दुरुस्त है जी। इराक का वो इलाका जहां से दरियाए दजला और फुरात मिलकर बहते हैं, क्या कहलाता है? ये करबला थी। शत्तुल अरब, ये जहां ये दोनों दरिया मिलकर बहते हैं, और ये कोई 120 मील लंबाई है। शत्तुल अरब उसको कहा जाता है जी। दूसरी गलती आपने की है जी। हजरत इमाम हुसैन के अलावा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और भी किसी ने यजीद की बैत करने से इनकार किया था? जी, नवासे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी बैत लेने से इनकार कर दिया था। जवाब दुरुस्त है आपका। बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बरस बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया था, वो जिसमें उन्हें कहा गया कि कश्ती बनाओ? ये तकरीबन 2242 साल थे। ये जवाब तो आपका दुरुस्त हुआ, लेकिन मुझे अफसोस है कि 2 गलतियां आपने की हैं। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों ने जो मोटरसाइकिल भेज रखा है वो। सर मुझे कोई अफसोस नहीं है, इस वजह से कि मुझे इतनी खुशी है कि मैं फाइनल तक पहुंची थी। और
ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों का ये मोटरसाइकिल, और आप फाइनल में पहुंची थी, आप 2 सवालों से आगे नहीं जा सकी। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से इसमें 5,000 रुपया है और फूल हैं। आपको मुबारक हो। हजीफा अनवर साहब ब्राइटो पेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जरा तशरीफ लाएं और अपने हाथ से ज़िया साहब को, आइए ज़िया साहब यहां। हजीफा साहब के लिए फूल। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपके सामने फाइनल भी खेला गया और ये अजीब फाइनल है कि हारने वाला कह रहा है कि मैं खुश हूं,